So we are discussing about data science. Let's have a brief introduction about what is it. As we have earlier discussed, data means anything that is comprised of some kind of information or knowledge about anything. Okay, so we are having a bulk of data. That data is of no use until unless we just refine that data for our purpose. That means हम जिस पर्पस के लिए इस डेटा को यूज करना चाहते हैं वो डेटा हमें रिफाइन करना पड़ेगा because there is a huge amount of data existing in the surroundings. That is what we call is raw data. Raw data means that data is of not particular meaning or information. So हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं ओके so science is basically the technology or the tools that we use for what for the refinement of that data for our purpose. हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं हम जिस भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं या किसी सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं वो सिस्टम require some kind of specific data related to the problem that is about to be solved. So we just need to define that particular data which is required by the system for a particular kind of situation or the problem. So for that we require some kind of sophisticated tools, some mechanisms जिसके थ्रू हम क्या करते हैं हम एक बल्क ऑफ डेटा में से क्या करते हैं एक मीनिंगफुल डेटा एक रिलेटेड डेटा अबाउट द स्पेसिफिक प्रॉब्लम हम उसको क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं दैट इज व्हाट इज एक्चुअली द डेटा साइंस. So we are going to identify about the data science and why is data science, where is data science, what is data science, how is data science, and who is the data scientist who can do the actual task of data science. This is our basic outline. First we will discuss about data science, data science, data science. ऐसे क्या है data science के अंदर? Why is so much of excitement about the data science in this? So basically we will discuss about the two things in this, the history and the examples of data science in the past that has held. Where does data come from? Data कहाँ से आता है भाई? What are the different sources of data? What is data science? Data science क्या होती है? How to do data science? Who are the data scientists? तो क्यों भाई इतना एक्साइटमेंट डेटा साइंस के लिए? इसलिए है क्योंकि एवरीथिंग इज डेटा. whatever we are doing is through the data. Data है तो we are working somewhere, we are working about something, we are discussing about something, and we are doing something. If data is not there, if we just remove the data from the whole concept, then there is nothing left behind. ठीक है हमारे पास भी हम डेटा तो we are interacting with each other. If we don't have any kind of data, so we are just like more dumb. ठीक है जी. तो जो डेटा एनालिसिस है डेटा साइंस क्या करती है? एनालिसिस ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा और उस डेटा में से हम क्या करते हैं एक मीनिंगफुल डेटा आइडेंटिफाई करते हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. ठीक है जी. तो ये ऐसा नहीं कि डेटा साइंस अभी एग्जिस्टेंस में है. इट इज फार फ्रॉम द अर्लियर ईयर्स बट now is the actual requirement because at that time the data was of very less quantity और जहाँ पे data is of very less quantity तो we don't require we purposely don't require some kind of machines जिसको हम data क्या करें organize कर सकें उसको manipulate कर सकें उसको analyze कर सकें. लेकिन अब क्या है
नाउ इज द डाटा इन बल्क मोड। बल्क मोड का मतलब क्या है कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है जिसको आप रफली, जिसको आप मैनुअली, विदाउट एनी मशीन्स, विदाउट एनी सोफिस्टिकेटेड टूल्स, आप उस डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते, आप उस डेटा को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और जब आप एनालाइज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो यू कांट इवन यूज दैट डेटा फॉर एनी काइंड ऑफ पर्पस। So now is the actual requirement of data science, because data is growing day by day and we just need to refine that data for our benefit. So this is a kind of little history about data science that started in 1935. R.A. Fisher, given the design of experiments, that how the experiments are being actually conducted, तो उसके लिए एक procedural methodology defined. Then in 1939 W. Deming given the quality control mechanisms, that how the quality can be controlled by using the data and its refined version. उसके बाद 1959 में a business intelligence system was proposed by Peter Loan. Then 1977 के अंदर exploratory data analysis, डेटा को एक्सप्लोर करके उसके इन डेप्थ इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करके यूज करना फॉर specific purpose. 1989 में business intelligence was given by Howard Dressner, that how the businesses can be manipulated, businesses can be grown up by using the technology, by using the data for their benefit. Then machine learning came into existence in 1997. As you all know very well that what machine learning is actually. That machine learns from the surroundings, from the environment, from there it works. जहाँ पे काम करती है वो सराउंडिंग से क्या करेगी, इंफॉर्मेशन गैदर करके उसको अंडरस्टैंड करेगी, उसको एनालाइज करके उसको इम्प्लीमेंट करेगी इनसाइड, ताकि जो बेटर जो आउटकम्स है दैट कैन बी गिवन बाय द मशीन। ठीक है। 1996 के अंदर आपके पास गूगल आ गया। यू नो गूगल बाबा इज वेरी एक्सट्रीमली पावरफुल about specifically if you talk about data, whatever kind of data you want to access from the Google, that Google is always ready 24/7 to provide you such kind of data in a very precise and meaningful way। ठीक है। उसके बाद 2007 में आ गया आपके पास फोर्थ पैराडाइम। फोर्थ पैराडाइम एक्चुअली क्या है? फोर्थ पैराडाइम इज एक्चुअली ए कंसेप्चुअल एनवायरनमेंट ऑफ improving the research cycle, that how the research can be organized and in a better way, so that some new and improved mechanisms or methodologies can be developed so as some betterment can be achieved. In 2009, the unreasonable effectiveness of data was given. Unreasonable effectiveness of data means data है वो उसकी जो इफेक्टिवनेस है दैट इज ऑलवेज देयर। आप उसको अंडरस्टैंड करें ना करें, मैं उसको अंडरस्टैंड करूं ना करूं, कोई और उसको अंडरस्टैंड करे ना करे, बट इट इज ऑलवेज इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ यूसेज फॉर ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ एप्लीकेशन और प्रॉब्लम। तो उसके ऊपर एक पूरा रिसर्च दिया था 2009 के अंदर। उसके बाद 2010 के अंदर द डेटा डीलर्स वाज गिवन कि भाई जो डेटा जो है आपका, वो डेटा क्या है? दैट डेटा इज द एक्सट्रीम property of yours to use for such kind of applications that require highly sophisticated mechanisms for improvement in particular kind of situations or areas। ठीक है जी। तो दिस इज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ डेटा एनालिसिस। यानी कि डेटा एनालिसिस ऐसा नहीं है कि अब हम डेटा साइंस पढ़ रहे हैं, नाउ इज द करंट सिनेरियो ऑफ डेटा साइंस, तो हम डेटा को अभी डील करेंगे। डेटा इज बीइंग डेल्ट फ्रॉम द earlier times of 1935 only, but need, we are discussing about need. Now is the actual need because data is booming day by day। तो क्यों हमें एक्साइटमेंट? एक्साइटिंग न्यू इफेक्टिव एप्लीकेशंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स की क्या है? इफेक्टिव एप्लीकेशंस एग्जिस्ट करती हैं क्या? जैसे कि 2008-9 के अंदर मैक्सिमम कोई फ्लू की कोई एक्टिविटी हैपन हुई थी। ठीक है जी। तो उसको एनालाइज करना, उसके सीवियरिटी को आइडेंटिफाई करना, किस एरिया के अंदर कितनी सीवियरिटी है उस पर्टिकुलर फ्लू की, वो सारी चीजें आइडेंटिफाई करने कैसे कर सकते हैं वो? बाय यूजिंग द डेटा। तो
गूगल फ्लू ट्रेंड्स है जैसे, तो गूगल फ्लू ट्रेंड्स क्या करता है, दैट डिटेक्ट्स द आउटब्रेक्स 2 वीक्स ahead ऑफ सीडीसी डेटा। जो सीडीसी डेटा था उससे 2 वीक पहले ही वो आउटब्रेक को क्या कर देता है, डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, सीडीसी डेटा, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, तो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का डाटा आएगा, उससे पहले तो गूगल फ्लू ट्रेंड्स ने क्या कर दिया, उसको आइडेंटिफाई करके बता दिया कि दिस थिंग इज अबाउट टू अराइव इन द मार्केट और द इन द एनवायरमेंट, तो वी कैन टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉर दैट। ठीक है जी। न्यू मॉडल्स आर एस्टिमेटिंग विच सिटीज आर मोस्ट एट रिस्क ऑफ फॉर स्प्रेड ऑफ द इबोला वायरस। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के लिए न्यू देयर आर सम न्यू मैकेनिज्म्स और टूल्स आर बीइंग डेवलप्ड कि भाई उनको यूज करके वी कैन आइडेंटिफाई विच इज द मोस्ट सीवियर place where the high effectiveness of corona is there, which are the less intensive areas affected by the corona, and blah blah blah. So these are the kind of uh, situations where we can use the data science to manipulate such kind of things for our betterment, ताकि we can take precautionary measures uh, uh, for protecting such kind of outbreaks. उसके बाद पॉलिटिकल कैंपेन्स के अंदर भी, ठीक है जी, तो इलेक्शंस वगैरह होते हैं, जो पॉलिटिक्स होती है जहाँ पे आपके वोटिंग सिस्टम होता है, उसके अंदर भी होता है। जैसे 2012 के इलेक्शंस के स्पीक अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहां पे क्या हुआ था कि भाई 538 ब्लॉगर्स प्रिडिक्टेड द आउटकम इन ऑल 50 स्टेट्स। यानी कि इलेक्शन हुए नहीं, उससे पहले ही जो 50 स्टेट्स थी उसके अंदर सभी ने क्या कर दी, 50 ब्लॉगर्स 538 538 ऐसे ब्लॉगर्स थे जिन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया कि कौन सी सीट किसके हिस्से में जाएगी। ठीक है, और सभी ने अज्यूम किया दैट बराक ओबामा फ्लोरिडा विक्ट्री इज कंफर्म। सबने पहले ही कंफर्म कर दिया, और बाद में जब इलेक्शन हुए तो इट वाज द एक्चुअलिटी। तो वो वहां पे क्या चीज हुई थी, वो वहां पे हैपन भी हुए थे एज पर द मेजर्स ऑफ द this kind of bloggers that have given some kind of predictions about the elections. So these are the kind of things that we can implement by using the data science. Page rank, पेज रैंक क्या होता है कि भाई आप जैसे गूगल पे कोई कीवर्ड डालते हो, तो आपने कोई कीवर्ड पुट किया, तो वो कीवर्ड क्या होगा, दैट विल बी सर्फ आउट इन द वेब बाय यूजिंग सम वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स। अब जैसे कि चाहे आपका वेब क्रॉलर है या वेरियस अदर कंपोनेंट्स ऑफ द आपके सर्च इंजन है, तो सर्च इंजन क्या करता है, आपकी इंफॉर्मेशन को सर्च करता है किसके ऊपर, एक वेब स्पेस है पूरा आपका जहाँ पे बहुत बड़ा डेटा अवेलेबल है। अब उस डेटा में से वो कैसे रिफाइन करेगा कि विच इज द बेस्ट सुटेबल रिजल्ट फॉर योर क्वेरी। तो उसके लिए क्या करते हैं जी, द सिस्टम डिफाइंस द पेज रैंक ऑफ ईच एंड एवरी पेज एग्जिस्टिंग ऑन द वेब स्पेस। अब उससे क्या होगा, पेज रैंक डिफाइन कर दिया, तो पेज रैंक कैसे होता है, पेज रैंक होता है ऑन द एक्सेसिबिलिटी एंड यूसेज पैटर्न्स, कि जी प्रीवियस में कौन सा पेज ज्यादा यूसेज में आया है, किसने ज्यादा एक्सेस किस पेज को किया है, ठीक है, किसकी सिवियरिटी ऑफ एक्सेस ज्यादा रही है पेज की, उसके अकॉर्डिंग पेज रैंक इज डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी पेज। यानी कि इट ट्रीट्स द वेब एज ए बिहेवियरल डेटा सेट। पेज के बिहेवियर, उसके रेस्पॉन्स के बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, सिस्टम पेज रैंक डिफाइन करता है। अब जो पेज रैंक, जिसका पेज रैंक हाई होगा, दैट मीन्स दैट पेज इज द मोस्ट दैट इज बीइंग यूज्ड। ठीक है जी। तो वो किसकी हेल्प से करते हैं, डेटा साइंस, क्योंकि हम डेटा को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं ऑन द यूसेज पैटर्न्स एंड अदर criteria that how it is being used, how many number of users have accessed it, and all these things. So such kind of data is collected and analyzed कि भाई किस पेज को हम क्या रैंकिंग दें, ताकि जो यूजर्स जो है उनको इफेक्टिव डेटा है वो एक्सेस में मिले। एक्सेस, ACCESS। स्पॉन्सर्ड सर्च, आजकल एक स्पॉन्सर्ड सर्च बहुत बढ़िया कंसेप्ट चल रहा है। स्पॉन्सर्ड सर्च का मतलब क्या है कि आप गूगल पे सर्च कर रहे हो, जैसे ही आपने कोई कीवर्ड सर्च किया, तो जो नॉर्मल जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो तो डिस्प्ले होंगे ही होंगे, अलोंग विद क्या होता है आपका
उन नॉर्मल सर्च रिजल्ट से ऊपर ऑन द टॉप ऑफ देम क्या होता है, कुछ स्पॉन्सर्ड सर्च रिजल्ट्स क्या करता है, वो शो करता है सर्च इंजन। वो क्या होते हैं, वो होते हैं जी पेड सर्च इंजन। पेड जो लिंक्स होते हैं, कुछ ऐसे वेब पोर्टल्स होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं जो क्या करती हैं, गूगल को पे करती हैं कि जी ये हमारा यूआरएल है और भाई ये हमारे कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड से रिलेटेड जब भी कोई सर्च होती है तो काइंडली आप हमारा जो लिंक है उसको पहले दिखाएंगे, क्योंकि वी आर पेइंग फॉर दैट। और गूगल को आप पे करोगे तो जाहिर सी बात है भाई, पैसे वाली चीज पहले आएगी, फ्री वाली चीज बाद में कंसिडर होती है। चाहे किसी भी इन्वायरमेंट सिचुएशन में आप उस चीज को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द स्पॉन्सर्ड सर्च। तो दैट इज आल्सो ए कांसेप्ट कि वो एनालाइज कर रहे हैं कि विच इज द हाईएस्ट लिंक्स दैट आर बीइंग यूज्ड, और जो हाईएस्ट लिंक यूज हो रहे हैं वो उनको गूगल पे डायरेक्ट अप्रोच करता है कि भाई आप आपका जो लिंक है हम आपको डिस्प्ले तभी करेंगे अगर आप हमें पे करते हो। ठीक है जी, आप पे करोगे तो हम क्या करेंगे, आपको टॉप में दिखाएंगे, नहीं तो क्या होगा, हम आपको बॉटम में भेज देंगे। दैट इज स्पॉन्सर्ड सर्च, पैसे का खेल। तो ये क्या कह रहा है, गूगल रेवेन्यूज अराउंड $50 बिलियन पर ईयर फ्रॉम मार्केटिंग, और उसमें से जो 97% जो है वो कंपनी का रेवेन्यू है। यानी कि कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो 97, उसका 97% सिर्फ और सिर्फ किससे आ रहा है, मार्केटिंग से। स्पॉन्सर्ड सर्च यूजेज एन ऑक्शन। अब स्पॉन्सर्ड सर्च क्या है, वो एक ऑक्शन यूज करती है, एक प्योर कंपटीशन फॉर मार्केटर्स। क्या कि भाई जिसको ज्यादा अपना लिंक शो करना है, पहले लिंक शो करना है, वो भाई अपना compete करो यहाँ पे आगे, जो ज्यादा पैसे देगा। ऑक्शन का मतलब क्या है, एक तो ये कर दिया कि भाई एक लिंक के $100 चार्जेस है स्पॉन्सर्ड सर्च में दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, दे यूज द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑक्शन। अब ऑक्शन में क्या है, जो जितनी ज्यादा बोली लगाएगा भाई उसी का लिंक पहले डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, गूगल इज अर्निंग मोर एंड मोर। ठीक है, और जिसको अपना जो अपनी मार्केटिंग करनी है, जो ज्यादा एक्सेस वांट्स टू कैप्चर द कस्टमर्स, तो उसको क्या होगा, ज्यादा पे करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑक्शन, जो ज्यादा पे करेगा दैट इज द विनर एंड विल यूज द रिसोर्सेज। तो जनरली ये क्या कह रहा है कि एक कंपटीशन फॉर मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर्स, कि जो कंज्यूमर्स के जो मॉडल्स है, यानी कि जो कंज्यूमर जनरली जिन रिसोर्सेज को यूज करता है, कंज्यूम करता है, उनके लिए क्या कर दिया, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जहाँ पे क्या होगा, एक कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी डेवलप कर दी। ठीक है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ डेटा साइंस, बिकॉज दे आइडेंटिफाई which are the particular resources that are being used in access। ठीक है, तो जो ज्यादा एक्सेस में यूज हो रहे हैं तो उनका क्या हो गया, उन्होंने क्या कर दिया, उस चीज को चार्जेबल कर दिया। ठीक है जी, तो देर आर अराउंड 30 बिलियन सर्च रिक्वेस्ट पर मंथ। पर मंथ जो रिक्वेस्ट सर्च रिक्वेस्ट होते हैं 30 बिलियन आते हैं, परहैप्स ट्रिलियन इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री बिटवीन सर्च प्रोवाइडर्स। ठीक है जी, यानी कि ट्रिलियंस ऑफ इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री। पास्ट की बात करें तो ट्रिलियंस ऑफ इवेंट्स जो सर्च प्रोवाइडर्स जो प्रोवाइड करते हैं, उनके इवेंट्स क्या है, ट्रिलियंस ऑफ इवेंट्स है ये। ठीक है जी, 30 बिलियन सर्च रिक्वेस्ट पर मंथ। गूगल एडवर्ड्स एंड एडसेंस, these are the new concepts। एडवर्ड्स तो ऐड के लिए जो पर्टिकुलर कीवर्ड्स यूज करता है गूगल, एंड एडसेंस वही कि भाई जो यूसेज जो है गूगल जिसको सेंस करता है, आइडेंटिफाई करता है कि विच आर द प्रोमिनेंट रिसोर्सेज दैट आर बीइंग एक्सेस्ड बाय द यूजर्स, तो उनको क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने स्पेसिफिक टूल्स डिजाइन किए हैं। These are the top 20 keyword categories. These are the top 20 keyword categories which are being in access. ठीक है जी, first one is the insurance, that is 24%, then is the loans, that is 12.8%, then mortgage 9%, then atomy, that is 3.6%, then credit 3.6%, then lawyer 3.2%, and blah blah blah. Other data science applications. Other data science applications include
ट्रांजैक्शन डेटाबेसेस, ट्रांजैक्शन डेटाबेस जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस हैपन होती है। ट्रांजैक्शन क्या होती है, जो क्या होती है, आइदर इट इज कंप्लीट और इट इज जीरो, तो दैट इज द ट्रांजैक्शन डेटाबेसेस। ठीक है जी। तो इनके अंदर भी क्या होता है, डेटा साइंस की एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं। जैसे कि आपके पास रिकमेंडर सिस्टम्स होते हैं, नेटफ्लिक्स, आप जैसा कंटेंट यूज करोगे, जैसा कंटेंट आप व्यू करोगे, वैसा ही कंटेंट वो आपको क्या करेगा, रिकमेंड करेगा। फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम इन सिक्योरिटी प्राइवेसी के अंदर फ्रॉड डिटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। वायरलेस सेंसर डाटा के अंदर हम यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर स्मार्ट होम्स हो गया, आपके रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ डेटा हो गया, और द इंफॉर्मेशन हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, डेटा साइंस को यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट डाटा, सोशल मीडिया डेटा, इसके अंदर भी डेटा साइंस को यूज कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज ए बल्क ऑफ डेटा। जो सोशल मीडिया के ऊपर आज आप डे बाय डे, इवन इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, आप क्या करते हो, ए बल्क ऑफ डेटा यू आर अपलोडिंग ऑन various kind of social media, whether it is LinkedIn, whether it is Twitter, whether it is Facebook, whether it is Instagram or any other kind of social media platform. सॉफ्टवेयर लॉग डेटा, ऑटोमेटिक ट्रबल शूटिंग, आपने देखा विंडोज में कई बार अगर कुछ एरर आ जाता है तो ऑटोमेटिक ट्रबल शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। दैट इज एक काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ डेटा साइंस की सॉफ्टवेयर लॉग, जो डेटा, जो सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो डेटा का लॉग क्रिएट करता चला जाता है। जैसे ही आप यूसेज पैटर्न्स को एनालाइज करते हो, तो वहां से जब भी कोई एरर अराइज, तो वहां से क्या करता है, वो ट्रबल शूटिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देता है, और जो मिनिमल एरर्स जो अगर सिस्टम के अंदर कहीं पे एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके कर देता है, रेक्टिफाई कर देता है। ठीक है जी। जीनोटाइप एंड फोनोटाइप डेटा, तो ये जीनोटाइप फोनोटाइप डेटा क्या होता है, जो स्पेसिफिक रिलेटेड टू पर्टिकुलर सिचुएशन और एनवायरनमेंट जो डेटा होता है, उसके अंदर आप यूज करते हो। जैसे कि स्पेसिफिकली वी टॉक अबाउट द मेडिकल साइंस, तो उसके अंदर आप जो पेशेंट सेंटर्ड डाटा होता है, या जो उसके मेडिसिन से रिलेटेड डाटा होता है, या और एनी अदर काइंड ऑफ डेटा, तो उस चीज को रिफाइन करने के लिए और उसको यूज करने के लिए फॉर बेटरमेंट, तो हम क्या करते हैं, डेटा साइंस को यूज करते हैं। Where does data come from? Now we are discussing about the sources of data, that where does it come? Big data sources. तो क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन ही हैपन हो रहा है, आपकी क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही हैं, आपके एग्जाम भी ऑनलाइन हो रहे हैं, आप सोशल मीडिया को भी ऑनलाइन प्ले कर रहे हो, आप गेम्स भी ऑनलाइन प्ले कर रहे हो, तो एवरीवेयर यू आर सर्कुलेटिंग योर डेटा। और वो डेटा क्या है, दैट डेटा इज बीइंग गैदर्ड, वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो मीडियाज है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, जो ऑनलाइन रिसोर्सेज है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं आपका डेटा जाके क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो डेटा इज बीइंग getting together more and more day by day in a bulk, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिग डेटा। ठीक है जी। तो एवरी क्लिक, एड इंप्रेशन, बिलिंग इवेंट, फास्ट फॉरवर्ड, पोस्ट, सर्वर रिक्वेस्ट, ट्रांजैक्शन, नेटवर्क मैसेज, फॉल्ट, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट इज हैपनिंग ऑनलाइन, तो सब में से क्या हो रहा है, डेटा कलेक्ट हो रहा है आपका। ठीक है जी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन टू मशीन, एम टू एम। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है कि एवरीथिंग इज बीइंग कनेक्टेड ओवर द इंटरनेट। अभी तक तो हम क्या थे, सिर्फ हमारे कंप्यूटर सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, सिर्फ हम उनको ही कनेक्टिविटी दे रहे थे इंटरनेट के थ्रू। नाउ इज द इरा ऑफ IoT। IoT इज ए नॉट ए कंसेप्ट, it is a scenario that is being used in each and every machine that is existing in your surroundings, in your area, in your city or in your country। यानी कि now the future is about to come where everything is connected, whether it is your home light, whether it is your fan, whether it is your pressure cooker, whether it is your induction, whether it is your computer system, whether it is your washing machine, whether it is your refrigerator, whether it is your air condition, everything is connected। और जब इतनी सारी मशीन्स एक नेटवर्क के थ्रू काम करेंगी, तो डेफिनेटली सम काइंड ऑफ डेटा विल बी जनरेटेड एंड विल बी स्टोर्ड एट ए सेंट्रल लोकेशन। हेल्थ एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, इतनी सारी साइंस एडवांस करने लगी, इतने सारे रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इतने सारे न्यू इन्वेंशन चल रहे हैं, इतने, चाहे वो हेल्थ के अंदर है या साइंस के अंदर है, न्यू थिंग्स आर बीइंग डेवलप्ड, न्यू थिंग्स आर बीइंग यूज्ड, न्यू मशीन्स आर बीइंग यूज्ड व्हिच आर ऑटोमेटेड। तो वो मशीन्स क्या करते हैं, डेटा को गैदर करती हैं फॉर बेटरमेंट फॉर द नेक्स्ट इवेंट, यानी कि नेक्स्ट टाइम व्हेन दे आर बीइंग यूज्ड, तो हम उस डेटा को यूज करके उस मशीन को रिफाइन करके बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
यूजर जनरेटेड, जो आप जनरेट करते हो। ठीक है जी, आपको टिकटॉक खेलना है, आपको फेसबुक चलानी है, आपको यूट्यूब के ऊपर आप वीडियोस डाल रहे हो, आप ट्विटर यूज कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम के ऊपर फोटोज डाल रहे हो, आप एनी अदर काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म दैट यू आर यूजिंग, तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, आप इंटेंशनली, आप नोइंगली क्या कर रहे हो, यू आर सर्कुलेटिंग, यू आर पासिंग योर इंफॉर्मेशन टू द ऑनलाइन वर्ल्ड। अब वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, दैट इंफॉर्मेशन इज बीइंग कलेक्टेड, और डे बाय डे इट इज इंक्रीजिंग इनटू ए बल्क बिग डेटा। So now data is the new oil. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2011 के अंदर ये बात बोली गई थी कि डेटा इज द न्यू ऑयल। ऑयल का मतलब क्या है, दैट इज द नेसेसिटी, दैट इज द नेसेसिटी ऑफ डूइंग द थिंग्स। अगर ऑयल नहीं है तो एवरीथिंग इज गेट्स स्टक। एक दिन ट्रांसपोर्ट के सिस्टम आप सीज कर दो, सब कुछ रुक जाएगा, everything will go in inflation mode. So now data is also considered in that category कि डाटा नहीं है तो भाई कुछ भी नहीं है। डेटा नहीं है तो आपके पास मशीन्स नहीं है, आपके पास डिवाइसेस नहीं है, आपके पास गैजेट्स नहीं है, आपके पास मीडिया नहीं है, आपके पास टूल्स नहीं है। मशीन वर्ल्ड, तो वहां पे मशीन्स काम किस पे करते हैं, डेटा पे, एंड दैट डेटा फॉर द मशीन एक्ट्स एज एन ऑयल, कि वो उसको फीड करेगा, देन द मशीन विल वर्क एंड यू विल गेट सम काइंड ऑफ आउटपुट। Now we are having 5 V's of big data. तो 5 V's of big data क्या है? Raw data. First one is the raw data. That is considered in terms of volume, how much quantity, then change over time. Data is continuously changing. It is dynamic in nature. That is velocity. Data types. There are various kinds of data available in the market. आपके पास audio data भी, आपके पास video data भी, आपके पास textual भी है, graphics भी है, animated भी है, and another kind of data is there. That is variety. Data quality. How much quality data you are using? That is the veracity. Information for decision making. For any particular kind of decision making, you are using some kind of information, and that information is termed as the value. The value that you use to take some kind of decision for performing a particular task. What can you do with data? अब डाटा के साथ आप क्या कर सकते हो? ट्रैफिक प्रिडिक्शन एंड अर्थक्वेक वार्निंग। ठीक है जी, ट्रैफिक को प्रिडिक्ट कर सकते हो आप, अर्थक्वेक वार्निंग्स आप जनरेट कर सकते हो। क्राउड सोर्सिंग प्लस फिजिकल मॉडलिंग प्लस सेंसिंग प्लस डेटा एसिमुलेशन। क्राउड सोर्सिंग को मिला के, फिजिकल मॉडलिंग को मिला के, सेंसिंग को मिला के और डेटा एसिमुलेशन को मिला के हम क्या करते हैं, वी जस्ट प्रोड्यूस द बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन जनरली अबाउट द स्टडीज related to transportation or the physical activities that are being conducted on the ground level. ठीक है जी। Now what is data science? It is a most emerging field. The future depends on the data science because it belongs to the companies and the people which turn, जो कंपनीज हैं और कंपनीज के अंदर जो पीपल जो काम करते हैं वो क्या करेंगे, वो उस डेटा को टर्न करेंगे किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। क्योंकि डेटा को यूज करके ही तो आप प्रोडक्ट बनाओगे ना, बिकॉज नाउ इज द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, नाउ इज द एनवायरमेंट वेयर मशीन्स वर्क, नॉट द ह्यूमंस। तो हमें एक मशीन्स डेवलप करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा,
डेटा को यूज करना पड़ेगा और एक एंड प्रोडक्ट्स के फॉर्म में हम क्या करेंगे, उसको डेवलप करेंगे। ठीक है जी। तो एक बेसिक डेफिनेशन जो कई बार मैं बता चुका हूं, ठीक है जी, कि इट इज द साइंस विच यूजेस कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, विजुअलाइजेशन, ह्यूमन कंप्यूटर interactions, collect, clean, integrate, analyze, visualize and interact with data to create data products. Because we are dealing with huge amount of data, we just refine the data according to our purpose. Purpose क्या है? End product we are developing. We are developing any kind of software, we are developing any kind of machine, we are developing any kind of other tools. For that we use the data, we use that refined data. That is actually the concept of data science. So I think for today it's enough. Rest we'll discuss later. If you have any doubts, so you can ask.